and welcome to Chai Pe Charcha with Drishti. In this series, we are going to talk about many things. It can be about movies, Netflix, about novels, about series, and so on. Sometimes about food as well. But before starting this series, I want to introduce you myself, who I am. So, hi, my name is Drishti. I am born and brought up in Raipur, Chhattisgarh. I have done my coaching, I have done my graduation in psychology, and then I became life coach, healer, and tarot card reader all through the lot of series in my life. This is something to discuss some other day, but when we are going to today on this first episode of this series, Chai Pe Charcha with Drishti, we are going to talk about this new book called Too Good to Be True by Prajakta Kohli, mostly known as Mostly Sane, and about her book कि how I felt it, how I feel about it, and should you read it or not. Now, if you ask me, I have to rate it like from out of 5. I would say I would give it 4 because एक तो I'm a way more romantic person. Like मैं romance को जीती हूँ. I breathe in love. So there was a lot of romance over in this book. There was a lot of small lovey-dovey things to be said, and there was a little dark humor in between. But the best thing is that it connect with me. I am a person who loves love. So I love the book, how it explained, and the personal thing that I loved about this was a character, अमन, जो कि हमारा हीरो था इस बुक में. वेन एवर जब भी उसकी बात हो रही होती है उस बुक में, उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या फिर उसके वो बोल रहा होता है, वो बात कर रहा होता है, आई लिटरली फील दैट रोहित सराफ स्पीकिंग. मतलब रोहित सराफ इज़ अ एक्टर जो कि मिसमैच में था, and he was like with Prajakta Kohli only. But damn, I have gone crazy about this guy. I used to think कि वो अमन ही है, and eventually कुछ चैप्टर्स के बाद ना मैंने अवनी को खुद को ही एज्यूम कर लिया था, and I had this very romantic thing. I was loving it literally because of this. जब मेरा imagination start हुआ, मैंने उस बुक को 48 आवर्स के अंदर कंप्लीट किया. दैट बुक वॉज ऑलमोस्ट 300 पेजेस, बट मैंने उसको 48 आवर्स मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर कंप्लीट किया है. आई जस्ट लव्ड इट. आई नो इट्स अ बेसिक रोम कॉम, but I yet still love it a lot because I felt connected to it. It was like my imagination जो कि मैं उसको पढ़ रही थी, इसको क्रिएट कर रही थी इन अ फॉर्म ऑफ मूवी. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ कोच, आई वुड से कि इस नावल में बहुत स्पेसिफिकली दिखाया गया है कि कैसे आपके अनरिजॉल्व ट्रॉमा आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं. लाइक जो इसमें मेन कैरेक्टर है अवनी, हर पेरेंट्स हैव गॉन थ्रू डिवोर्स, और she was not able to accept that कि how her parents can go through a divorce when she is someone who just love. She is a bookworm who loves novels, एंड वो अपनी ही दुनिया में एक रोमांस क्रिएट कर रही होती है, बट हर पेरेंट्स हैव गॉन थ्रू द डिवोर्स. उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर विद इन 24 आवर्स उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है. शी हैज सो मच ऑफ ट्रॉमा इन हर बॉडी, इन हर सेल्फ, कि वो उस चीज़ को, उसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट उसके रिलेशनशिप पे दिखता है, जो कि अमन के साथ बहुत बाद में दिखाया जाता है. फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कोच आई कैन से कि हमें लगता है कि बहुत बार हम चीज़ों को पीछे छोड़ आते हैं, लाइक हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया तो वो हट गई, बट नो, वी जस्ट सप्रेस इट. हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, हम जो फील कर रहे हैं हम उसको सप्रेस करते हैं, बट जब कुछ ना कुछ ऐसा फिर से होता है वी लिटरली गो इन टू दैट स्पेस. हमें वो चीज़ें ट्रिगर करती हैं, दैट्स वाई वी रिएक्ट, कि वो चीज़ें बाहर आने की कोशिश कर रही होती हैं. A message from a coach would be कि if you feel that you have gone through something in your past life, I know it's hard to accept or acknowledge, but start small by small steps. ना take a baby steps, but you have to do it because उसका effect आपके खुद के relationships में बहुत दिखता है. If you don't resolve your relationship, your past traumas, वो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी रिलेशनशिप में बाहर आएगा. मे बी इन योर जॉब, मे बी इन रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, इन एनी वे और एनी फॉर्म, बट वो बाहर आएगा ही आएगा. सो बेटर इज टेक अ बेबी स्टेप, स्टार्ट सॉल्विंग इट स्मॉल बाय स्मॉल एक्शंस. इफ़ आई हैव टू टेल यू कि मेरा बेस्ट सीन क्या था इस पूरी नॉवल में से, देयर आर मैनी, बट जो एक सबसे बेस्ट था
सो जो अवनी है, जो हमारी हीरोइन है इस बुक नॉवेल की, वो एक बुक शॉपिस्ट काम करती है, एक बुक लाइब्रेरी में काम करती है वो, और वहाँ पर बहुत सारी बुक्स रहती हैं। तो दिस करेक्टर अमन वो जाके उसे बोलता है कि मुझे ना अपनी नीस के लिए एक बुक चाहिए, उसका बर्थडे आने वाला है एंड आई वांट टू गिफ्ट हर, जबकि उसकी कोई नीज नहीं होती है। ऑल ही वांटेड वाज टू गेट टॉक टू हर दैट गर्ल अवनी, क्योंकि वो उसको क्यूट लगने लगती है। आई रियलाइज्ड कि मैन डू पुट एफर्ट्स, मर्द भी मेहनत करते हैं, बट ओनली फॉर अ वुमेन दे वॉन्ट टू बी विथ, सिर्फ उसके लिए जिसके साथ वो रहना चाहते हैं। नाउ इन दिस सेगमेंट आई विल टेल यू कि क्या आपको ये बुक पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। आई वुड से कि इफ़ यू आर समवन हु इज़ लाइक बॉलीवुड लवर, आपको बॉलीवुड बहुत पसंद है, आपको थोड़ी चीज़ी लाइंस बहुत पसंद है, समटाइम्स थोड़ा सा डार्क ह्यूमर बहुत पसंद है, और इफ़ यू फील लाइक यू लव लव, आपको छोटी सी कहानियाँ सुन के भी मज़ा आने लगता है, यू आर लाइक ओ गॉड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। लाइक फॉर मी आई एम अ पर्सन, मैं किसी की भी कहानी सुनने बैठ जाऊँगी, आई एम लाइक लव स्टोरी, मैं बैठ के सुनूंगी, ये बताओ मुझे। सो आई एम क्रेजी अबाउट लव स्टोरीज। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट लव स्टोरीज और यू आर थिंकिंग यू वॉन्ट टू रीड द बेसिक लव स्टोरीज, आप स्टार्ट कर रहे हो जस्ट अभी पढ़ना, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक एंड लेट मी नो योर रिव्यूज़।